of authorship attribution technique on Urdu tweets. These are the members, Zain Ali, Zufisha and Amna Saud. What is authorship attribution? The process of identifying the author of an anonymous document from a group of document of unknown documents, ठीक है, is called authorship attribution. For example, हमारे पास एक group of documents हैं जिनके authors हमें नहीं मालूम, लेकिन हम कुछ ऐसा process उस पर apply करें कि हमें at the end result में हमें पता चल जाए कि document का actual author है कौन. Introduction. We discussed 3 important points in this paper: short communication, cybercrime activities, and authorship attribution for Urdu language. Short communication. As a trend is moving towards shorter communication rather than longer communication, हमारे जो जितने भी social medias हैं like Twitter, Facebook, WhatsApp, ये सारे ही shorter communication based हैं. तो इसलिए हमारी जो हमने जो prefer किया है वो shorter communication, अपनी technique जो use की है वो shorter communication पे ही apply की है. From the early 21st century, it became possible to determine the authorship of a document of less than 250 words. In this paper, we worked on Twitter dataset. Why Twitter dataset? Because Twitter is a microblogging website and the most hottest microblogging website nowadays. Twitter are considered one of the shortest form of communication currently in use. Post on the Twitter is called tweets. It is reported that it receives over 500 million tweets per day and around 200 billion tweets per year. That is why we prefer Twitter. The reason of its popularity is the limited character in a post. As I told earlier that we work on shorter communication, that is why we choose Twitter. The most common length of a tweet is 33 characters. Cybercrime activities. As the world is moving toward online communication and the trend of online criminal activities is also increasing. Activities like phishing and bullying. क्रिमिनल जैसा हमारे मोस्टली फेसबुक पे होता है कि आप अपनी फेक आईडी बनाते हो और फिर आप एक इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे. These are actually also criminal activities. Criminal hide their identity behind the screen name and connect anonymously. जनरेट डिफिकल्टी वाइल ट्रेसिंग. जाहिर बात है जब आप अपनी एक फेक अकाउंट बनाते हो तो आपको साइबर अगर आप इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होता है कि ये ट्रेस करना कि एक्चुअल ऑथर जो भी बिहाइंड द स्क्रीन वो कौन है. कैन वी ट्रेस द क्रिमिनल यूजिंग ऑथरशिप एट्रीब्यूशन टेक्निक? यस वी कैन. और हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ऑथरशिप एट्रीब्यूशन की बेस पे हम एक्चुअल ऑथर को ट्रेस कर सकते हैं. ऑथरशिप एट्रीब्यूशन फॉर उर्दू लैंग्वेज. जो हमारे वर्क की नोवेलिटी थी मेन वो हमारी यही था कि हमने उर्दू लैंग्वेज पे काम किया है, बिकॉज उर्दू लैंग्वेज पे अभी तक जितना बहुत कम काम किया हुआ है. तो हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, इसलिए हमने उर्दू डाटा सेट को यूज़ किया था. Our motivation is to promote Urdu language as very less amount of work has been done on it. This paper evaluate current technique of authorship attribution of at linguistic level. हमने एक जो current techniques हैं authorship attribution को उसको check किया है और उसको linguistic level पे, मतलब जो हमारी English पे हमारी जो techniques apply हुई हैं उन्हें हमने उर्दू पे apply किया और check किया है. फिर हमने उसको compare किया है English के लैंग्वेज पर और उर्दू लैंग्वेज पे. फिर उनके जो रिजल्ट्स हैं हम उनको कंपेयर किया कि ये बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं. जैसा वो इंग्लिश के लिए परफॉर्म कर रहा था ऐसे ही उर्दू के लिए भी परफॉर्म कर रहा है या नहीं. हमने अपने रिजल्ट्स को कंपेयर किया हुआ एट द एंड. लिटरेचर रिव्यू. आमना सऊद. अस्सलाम वालेकुम सर. Literature review. Author identification clarifies the isolated author in terms of writing style compared to the other authors writing style. Already ज़ोफ़िशा ने हमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं वो स्टाइल मार्कर्स हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, कंटेंट स्पेसिफिक फीचर्स हैं. अगर हम बात करें सबसे पहले स्टाइल मार्कर की, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टाइलोमेट्रिक फीचर्स आते हैं. ये कुछ हमारे पास ऐसे फीचर्स हैं जिस तरह इसने बात की कि हमारे ट्विटर के ऊपर काम था. अब ट्विटर के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर हमारे जब इंग्लिश वर्जन को उर्दू वर्जन के अंदर अगर करें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी लेंथ होते हैं, सेंटेंसेस की लेंथ होती है, वोकैबुलरी होते हैं, पंचुएशन मार्क्स होते हैं
बेसिकली ये हमारे सारे स्टाइल मार्कर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं ये हमारे पास ऐसे स्टाइल्स होते हैं जो कि हमारे ऑथर की तरफ से हमारे पास एक वोकेबलरी आएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चरल फीचर्स हमारे पास नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, सेंटेंस टाइप्स, इस तरह अगर बात की जाए तो 1930 से लेके 1950s तक कुछ इस तरह कैटेगराइज किया गया था कि अगर हमारे पास कोई एक अप्रोच है तो वो एक फॉर्मल फीचर के थ्रू जाती थी, अगर एक लैंग्वेज है तो वो फोनोलॉजी या मॉर्फोलॉजी या उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली हम उसको कैटेगोरिकली डिफाइन करके उसके अप्रोच को डिफाइन किया करते थे। अगर हम कहते हैं कि अगर एक लैंग्वेज को हमने कंसीव कर लिया है, अगर वो कंसीव लैंग्वेज है तो बेसिकली दैट इज योर सेल्फ कंटेन्ड लैंग्वेज और योर सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, जो कि हमारी डिफाइन करेगा by the relationships to the other elements within the system। जो भी हमारे पास सिस्टम होगा, ये सब पकड़ेगा, जो भी हमारे पास सिस्टम वगैरह होगा उसके अंदर हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है, उसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर फीचर्स आएंगे। देन हमारे पास कंटेंट स्पेसिफिक फीचर्स हैं, और कंटेंट स्पेसिफिक फीचर्स हमारे पास वो वाले फीचर्स होते हैं जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं किसी भी लैंग्वेज का कॉन्टेक्चुअली, अगर उसके कोई सिग्निफिकेंस है, अगर कोई सिग्निफिकेंस है तो वो किस एस्पेक्ट तक है। अगर सब्जेक्ट की है टू सम एक्सटेंट, उनके अगर हम कहते हैं कि जी वी आर हैविंग सम रिटन वर्क, और अगर वो रिटन वर्क है तो उसके अंदर कौन कौन से स्लैंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप लोगों ने खुद भी ट्विटर यूजर यहाँ पे हैं, सोशल मीडिया ऐप है, तो वहां पे अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेजॉरिटी जो हमारे होते हैं पॉलिटिशियंस हो गए, हमारे कोई एंकर्स वगैरह हो गए, या हम जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, तो हम लोगों ने भी वहां पे एक मीन ऑफ इंटरेक्शन किया होता है। सो इसी तरह अगर हम स्टाइलोमेट्री टेक्निक्स को देखें तो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास राइटिंग स्टाइल्स थे, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, बायसेंट टेक्निक्स, न्यूरल नेटवर्क और कस्टम टेक्निक। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बेसिकली अब ये लिटरेचर रिव्यू है, तो लिटरेचर रिव्यू में हमारे पास या तो हिस्ट्री में आ रहा होता है या फिर हम उसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन वगैरह बताते हैं। यहाँ पे जो अप्रोच हमने देखी, जो सबसे ज्यादा जो मैंने सारा ओवरव्यू किया, तो यहाँ पे लोगों ने सबसे ज्यादा न्यूरल नेटवर्क को यूज किया, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क एक ऐसी है कि टेक्निक, एक ऐसा मेथड है जिससे हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो कंपैरेटिवली बाकियों के एक हाई उसमें आती है। जितने भी प्रीवियस मेथड्स थे तो उसमें यहाँ पे हमने न्यूरल नेटवर्क को दिया, लेकिन अब आगे जाके आपको जैन और ज़ुल्फ़िश ये बताएंगे कि न्यूरल नेटवर्क से भी लेटेस्ट अब हमने एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन सुपर मशीन लर्निंग एल्गो यूज किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, जो ऑथर्स हैं वो दिस मेथड रिकॉग्नाइजेस द स्पॉटेड ऑथर्स in 60% to 80% of the cases। अब 60% से 80% जो केसेस हैं वो हमारे ऑथर्स ने इस मेथड के थ्रू रिकॉग्नाइज किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिसर्च क्वेश्चन जो सबसे पहले इस रिसर्च करने से पहले एक माइंड में एक क्वेश्चन आया, वो ये था कि हाउ इफेक्टिवली एग्जिस्टिंग ऑथरशिप attribution techniques give attribute to the author of the tweets written in Urdu language। बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा काम इंग्लिश पे है, इंग्लिश के अलावा उर्दू लैंग्वेज के अंदर सच किसी के इतना वर्किंग नहीं है। सो एक ये क्वेश्चन माइंड में आया। उसके बाद फिर हमारे पास आया कि फॉर एक्यूरेट ऑथर प्रोफाइलिंग हाउ मेनी ट्वीट्स पर ऑथर आर नीडेड, is there any significant effect on accuracy by increasing or decreasing the number of tweets per author। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या नाम है कि क्या जब हमारे पास ट्वीट्स आ रहे हैं, क्या वो ऑथर के अकॉर्डिंगली उसको जो लाइक्स और उसके डिसलाइक्स आ रहे हैं, क्या वो उसकी एक्यूरेसी वगैरह उसके अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है कि उसके अंदर डिक्रीमेंट आ रहा है। सो बेसिकली दीज आर द रिसर्च क्वेश्चंस जो कि हमारे माइंड में आया, और उसके बाद हमारा ये रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे बात आती है डेटा सेट की। तो सर डेटा सेट जो है यहाँ पे सर जो है ये हमारे अपने क्रिएट किए हुए डेटा सेट्स हैं, ये कहीं से उठाए हुए नहीं है। We created our own data sets from locally available English and Urdu tweets from the Twitter। अब यहाँ पे हमने जो ट्विटर के अंदर से हमने ट्वीट्स लिए जो कि हमारे लोकल थे,
मीन्स के इंग्लिश भी और उर्दू भी। द ट्वीट डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 ऑथर्स। अब हमारे पास जो डेटा सेट्स है वो हमारे पास 8 ऑथर्स का होगा, मीन्स के 4 फॉर उर्दू एंड 4 फॉर इंग्लिश। 4 हमारे पास उर्दू के डेटा सेट्स होंगे और 4 हमारे पास इंग्लिश के डेटा सेट्स होंगे। और ये सारे डेटा सेट्स हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। We collected the most recent 180 tweets against each selected author from March 2020. अब जो हमारे पास लेटेस्ट अप्रोच आई थी वो हमने 180 ट्वीट्स की वो हमने मार्च 2020 से किया था। अब मेथोडोलॉजी को स्टार्टिंग में जोफिशान डिफाइन करेंगे, उसके बाद जैन। हमने अपनी जो मेथडोलॉजी उसको स्टेप्स में डिवाइड किया है कि हमने किस तरह से स्टार्ट किया और किस तरह हमने अपने रिजल्ट्स जनरेट की। कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने अपना इनपुट डाटा सेट, जो भी हमारा, जिस तरह आमना ने भी बताया कि हमने अपना डाटा सेट क्रिएट किया था, तो उसमें हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग की। प्री प्रोसेसिंग में हमने सबसे पहले उस पर टोकनाइजेशन की। टोकनाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि आप वर्ड्स को टोकन्स में अलग अलग स्टोर कर लो। लाइक दिस इज अ सैम्पल, इसमें हमने दिस को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, आ को अलग और सैम्पल को अलग कर दिया है। टोकनाइजेशन के बाद हमने उस पर लोअर केसिंग अप्लाई किया। लोअर केसिंग क्या होता है कि अगर आपके टेक्स्ट में, जिस तरह माई नेम इज जुफिशा हमीद, इसमें जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं वो कैपिटल हैं बट रिमेनिंग स्मॉल हैं, और नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें सारे ही कैपिटल हैं, उसको लोअर केसिंग क्या करता है कि सबको एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, लोअर केस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी उसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। उर्दू में तो इसको ऐसे यूज़ नहीं किया उर्दू टेक्स्ट के लिए, लेकिन इंग्लिश के लिए हमने इसे यूज़ किया इस टेक्निक को। और नेक्स्ट एनग्राम्स।